अरे क्या बोल सो बोथ क्या सो जब हमारे दिमाग में मैं ऐसे देख रही हूँ तो चालू हो गया because it's a very big island, okay? So Greece is not island. Okay. Greece is the mainland. से बोट से जाएं या फिर बोट के ferry. बोट is एक छोटी सा बोट. अच्छा Can we continue? Hi guys, what's up and welcome to my channel Beauty Edit by Amy. I think this is the first video where मैंने हरदीप को मैं फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में लेके आई हूँ बिकॉज ही हैज़ टू बी देयर इन दिस वीडियो बिकॉज ये इस वीडियो का बहुत कोर पार्ट है एंड या टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ वी प्लान आवर ग्रीस ट्रिप all by ourselves in almost like half of the budget. हम almost 9 or 10 days के लिए हम ग्रीस गए थे and we have covered lot of things like lot of islands and ग्रीस का एथेंस में भी हम बहुत टाइम रुके थे. So I was getting, when I was posting my stories on Instagram and WhatsApp, I was getting lot of queries like आपने कैसे प्लान किया, all of a sudden आप ग्रीस में कैसे गए, how is the weather, when is a good time to go and how is the overall budget and how do you plan this trip by your own. ऐसा मुझे बहुत सारे questions आए. So I just sat down today like both of us and हमने सोचा कि थोड़े आपके queries के answer किए जाए before we start our actual vlogs. So we just thought to put this video first so that this will help you guys to plan your Greece trip on your own. So yeah, without further ado, let's get into the video. And yeah, meanwhile you're watching this video, if you found this video helpful, then please don't forget to subscribe button down there. It will help me a lot to grow further. Okay, so first thing first, ग्रीस जाने का प्लान कैसे बना हमारा. दिस वॉज अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू आइडिया. तो हरदीप आपको बताएगा कि हमारा प्लान कैसे बना. So actually last time जब हम टर्की गए थे तो टर्की was a very beautiful place. So when we came back to India from Turkey, so we were exploring more places where we can plan our next destination in future, maybe in a year or so. So we were exploring reels on the Instagram and we come across with the beautiful landscapes of Greece and Santorini. Then we thought okay, let's explore in detail about Greece and we can plan our next visit to there. और ये इतना फ्रीक्वेंट हो गया था, मतलब लिटरली हरदीप और मैं ना एक दूसरे को दिन में मतलब 4-5 रील्स तो एक दूसरे को भेजते थे यार ग्रीस जाने के लिए. मुझे था कि नहीं यार यहाँ पे तो जाना ही है, यहाँ पे तो जाना ही है. सो वी इनिशियली वांटेड टू प्लान कि वो प्रॉपर सा फोटोग्राफी वगैरह होता है ना, वेडिंग फोटोशूट एंड ऑल, बिकॉज वी नेवर डिड आवर प्री-वेडिंग और वेडिंग फोटोशूट. वी आर नॉट इनटू दैट बेसिकली, बट हमको ऐसे ही लगा कि वहाँ पे जाते हैं, थोड़े अच्छे फोटोज निकालते हैं और सो it all started with sharing reels और and it all started with कि हमको ना किसी ब्यूटीफुल जगह पे जाना है. ग्रीस के अराउंड हमने रिसर्च किया था तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक 6,000 आइलैंड्स और उसमें से इनहैबिटेड कुछ 227 islands. After that we thought okay, let's go ahead and start exploring visa formalities for Greece. Although we were having our valid Canada and USA visa, still we need a visa to travel to Greece, which is a part of Schengen. So while exploring documentation part for Greece, we came across with one requirement where we need to get our marriage certificate apostille because in our both passport husband's and wife's name was not mentioned, so that's why we need to get our marriage certificate apostille. So for that matter we need to spend almost 2 to 3 weeks to get our document back. So I explored various vendors in the market who are getting these things done. Although VFS is also doing that, but they are charging almost double the amount. Yeah, so like अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो मेक श्योर कि मतलब अगर आपके पासपोर्ट पे एक दूसरे का नाम है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज जो है वो करनी पड़ती है. So जब हमारा डॉक्यूमेंट आया अपोस्टाइल होके मिनिस्ट्री से, वी बुक्ड आवर अपॉइंटमेंट विद VFS in Pune. We submitted all our documents for the visa part, so it took almost more than a month to get our passport back. So I think within 45 days so, yeah. we got our passport back with the valid visa. So all the visa was not with the multiple entries, that was only with the single entry for 30 days. So
we were happy with that because we planned our travel only for ग्रीस एंड कभी कभी क्या होता है ना, मतलब जो शेंगन वीज़ा है ना उसका भी अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग नॉट वैलिडिटी, आई वुड से वीज़ा आने के लिए अलग अलग टाइमलाइंस होते हैं उसके. तो इफ़ यू ऑलरेडी हैव हैव बीन ट्रैवल टू शेंगन कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज में आप ऑलरेडी जा चुके हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वीज़ा बहुत जल्दी मिलेगा, आपका दूसरा वीज़ा, तीसरा वीज़ा जो भी मिलेगा, और वो ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है. सपोज आप 2-3 बार जर्मनी जाके आए हो, 2-3 बार क्रोएशिया, कहीं पर भी जाके आए हो, तो आपको जो नेक्स्ट शेंगन वीज़ा मिलता है वो थोड़ा जल्दी मिलता है एंड काफ़ी टाइम के लिए मिलता है. कभी 30, जैसे हमको 30 डेज़ के लिए मिला, देन किसी को 60 डेज़ के लिए मिलता है, 90 डेज़ के लिए मिलता है एंड सो ऑन. So after submitting our visa application, we started exploring options where we can stay in these islands. Then बट उसके पहले हमने डिसाइड किया था कि कहाँ पे जाना है. ठीक है, हमको ऐसे नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी. तो ओके, आई कवर दैट पार्ट गाइस. ओके, सो हमने ना, मतलब मोस्टली आप देखोगे ना इंटरनेट पे, यू विल ओनली फाइंड लाइक मिकोनोस, सैंटोरिनी, और ये मतलब मेजॉरिटी आइलैंड्स है जहाँ पे लोग जाते हैं. बट वी जस्ट थॉट कि यार 9 दिन के लिए जा रहे हैं तो 3-4 दिन एक ही आइलैंड पे बिता के हम क्या करेंगे, राइट? विच इज़ ओके. अगर आपको जाना है वहाँ से चिल करना है, कुछ नहीं करना है, आइलैंड पे बस मजा करना है, यू कैन डू दैट. बट वी वर लाइक कि नहीं, थोड़े और भी आइलैंड्स एक्सप्लोर कर लेते हैं. इट्स नॉट ओनली सैंटोरिनी एंड विच इज़ ट्रू. एक्चुअली मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगी. I would say Santorini is overrated. This is completely my opinion, not my husband's opinion. He loved Santorini, but according to me, मुझे मतलब बाकी islands भी बहुत अच्छे लगे Santorini के comparison में. Okay, so then we started listed down कि हम कहाँ जा सकते हैं, कौन से island कैसे connected है, because we travel in the month of October, almost like October end में, which is like a shoulder month. Okay, तो जो final plan हमारा बना, जो हमने list down किए, तो first तो obviously Mykonos था, because ग्रीस से जब आप जाते हो सबसे पहले तो मोस्टली एथेंस से तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट सही पड़ती है मिकोनोस की, एंड देन पीपल गो टू सैंटोरिनी. तो हमने पहले हम गए मिकोनोस, देन वी वेंट टू नेक्सस के बाद वी वेंट टू पारोस, क्योंकि वो एक्चुअली वो 2-3 आइलैंड ना बहुत आजू बाजू में ही है. देन वी वेंट टू सैंटोरिनी, एंड सैंटोरिनी के बाद जब हमको वापस आना था ग्रीस, देन ऑन आवर वे बैक हम गए मीलोस में एक दिन के लिए. एंड ओ माई गॉड, इट इज सच अ ब्यूटीफुल आइलैंड, वेरी आइसोलेटेड, वेरी अंडररेटेड. मतलब जो बहुत सारी भीड़ थी ना वो सारी सैंटोरिनी में थी, और मीलोस में कुछ भी नहीं था. इट वाज लाइक अ वेरी क्वाइट आइलैंड. ओ सॉरी, वी वेंट टू क्रीट आल्सो. ओके, क्रीट, ओके, सैंटोरिनी के बाद हम क्रीट गए, क्रीट के बाद हम मीलोस में गए. So and then Milos से finally we came back to Athens. और एथेंस में भी हम दो दिन रुके थे एथेंस में भी, because we wanted to explore Plaka and all those beautiful alleys. Okay, let's talk about numbers now, because our goal was to enjoy the Greece, enjoy our entire experience without breaking bank. So let's talk about expenses part. First, we spent almost 20 to 25,000 on our visa. Each? No. In total we spent almost 25,000 on visa. So this time we explored first Indigo, later on we explored Qatar Airways and Etihad Airways. So we got a very good deal with Etihad Airlines. So we booked our flight almost 1 lakh rupees for both. Return journey. Make reservation with we planned in such a way, we are landing in Athens, and we thought in spite of spending one night in Athens, we can directly travel to Mykonos. So we booked one flight from Athens to Mykonos. So although we spent 3 to 4 hours at Athens airport, then we traveled to Mykonos. I was exploring options side by side on various websites in terms of Skyscanner, Cleartrip, EasyMyTrip. So I was getting a very good deal while booking flight tickets from there. So I was getting ticket for both of us at 20,000 rupees. So I thought, okay, let's go and book it. That is a domestic one, right? Yeah, correct. Yeah. So I think on Monday I was able to get those flights at 14,000 rupees for both of us. One-way ticket from Greece to Mykonos. So we booked from Skyscanner directly. So Skyscanner is the platform which will redirect you to the various third-party agencies. So when I was booking their ticket, I directly land upon the Sky Express Airlines page from where we booked our ticket from Athens to Mykonos. So when we were in Mykonos, from Mykonos to further, we used jetty to travel, right? Yeah. So for jetty, almost for one person, that will cost you around 10,000 rupees. 10,000 and even lesser. I think Mykonos to Santorini was 10,000.
एंड उसके जो बीच में नेक्सस वगैरह थे वो बहुत क्लोज है आइलैंड, तो वो थोड़े कम थे। ओके, सो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे कैसे ट्रैवल किया। एथेंस से वी वेंट टू मिकोनोस में कुछ देर हम रुके, कुछ दिन रुके, देन वहाँ से हमने नेक्सस गए, पारोस से अगेन वी केम बैक टू मिकोनोस। आई नो इट साउंड्स वेरी हेक्टिक बट उतना हेक्टिक था नहीं बिकॉज वहाँ का वेदर वगैरह बहुत अच्छा था। देन मिकोनोस से जेटी में, ये सब मैं जेटी का ट्रैवल बोल रही हूँ, सिर्फ हमने ग्रीस टू मिकोनोस जो है वो फ्लाइट लिया था। देन मिकोनोस से एक फेरी लिया, आई थिंक दैट वाज अ लॉन्ग वन ना, 2 घंटे 3 घंटे का था शायद, मिकोनोस टू सैंटोरिनी। करेक्ट। तो देन मिकोनोस टू सैंटोरिनी हम गए और सैंटोरिनी में हम आराम से 3-4 दिन तो थे वहाँ पे। एंड देन सैंटोरिनी में बिकॉज वी वर 3-4 डेज, तो एक दिन हम सैंटोरिनी से क्रीट गए थे, जस्ट 1 डे का ट्रिप, एंड देन वापस क्रीट से आ गए हम सैंटोरिनी, और नेक्स्ट डे वापस हम सैंटोरिनी से मीलोस गए, देन अगेन मीलोस से वी केम बैक टू सैंटोरिनी। एंड फाइनली मतलब बिकॉज हमने कनेक्टिविटी वगैरह बहुत देखी, आप ऐसे एक एक करके ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि पहले हमने वही सोचा था कि हम सैंटोरिनी से क्रीट जाएंगे, फिर मीलोस जाएंगे, फिर आगे एथेंस जाएंगे, बट वैसी कनेक्टिविटी होती नहीं है स्पेशली इन शोल्डर मंथ्स, एंड आई थिंक यूजुअली भी नहीं होती बिकॉज ये जो मेन स्पॉट्स है ना वहाँ से ही सारे छोटे छोटे आइलैंड्स की कनेक्टिविटी है। तो एंड देन फाइनली देन वी केम बैक टू सैंटोरिनी, तो वहाँ से तो हमको एथेंस के लिए बहुत सारे फ्लाइट्स मिले थे। So there was no much difference in both the prices if we booked our travel from Santorini to Athens via ferry or via flight. एंड स्पेशली मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ, मेरे या दोनों के केस में, अगर आपको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है ना, मैं तो कहती हूँ फेरी को अवॉइड करो, बिकॉज जब हम मिकोनोस से सैंटोरिनी जा रहे थे, ओ माय गॉड दैट वाज पैथेटिक। मतलब वो फेरी, वो जर्नी ना, मतलब आई वाज लाइक अरे क्यों हमने फेरी लिया उस टाइम पे ना। सो इट वाज वेरी दैट जेटी वाज वेरी स्मॉल एंड आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट वी डिडंट लाइक दैट एक्सपीरियंस एट ऑल। बाकी तो ठीक है, थोड़े 1-1 घंटे के जो फेरी से आई डिडंट मेक दैट मच डिफरेंस, बट अदरवाइज आई वुड हाईली सजेस्ट कि जहाँ जहाँ आपकी फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, यू शुड ऑप्ट फॉर फ्लाइट टू सेव टाइम। Now let's come to the accommodation and the most important part, because उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट कितना क्या है, बिकॉज फ्लाइट के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, फूड एक्सपेंसेस भी सेम होता है, बट इट्स ऑल अबाउट अकोमोडेशन, जिसके ऊपर आप कैसे खर्चा करते हैं उसके हिसाब से आपका बजट चेंज होता है। ओके, सो वी ऑलमोस्ट स्टेड इन एयरबीएनबी। हमारे 4 स्टेज थे और चारों के चारों, मतलब एक होटल वाला स्टे था, बट वो एयरबीएनबी पे भी अवेलेबल है, लावा के, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकोमोडेशन मैंने अकेले ने, बट ओके तुमने अकेले, बट आई विल टेक क्रेडिट, क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टी जो शॉर्टलिस्ट किए थे, कहाँ पे रहना क्या करना है, वो मैंने किया था। मैं तुम्हें क्रेडिट देने जा रहा था। So let's talk about Mykonos. We stayed in Ornos. So that was a very happening place. Yeah. So जो हमारा फर्स्ट डे था वो हमने लिटिल वेनिस में ही किया था। इट्स वेरी वॉकिंग डिस्टेंस, बट कंपैरेटिवली वहाँ पे बहुत क्राउडेड होता है, तो वी जस्ट थॉट कि नहीं कहीं और भी देखते, तो वी वर गोइंग डाइसी, यहाँ करे वहाँ करे, और उतने में हमारा लिटिल वेनिस का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी था, वो चला गया ऑल इन दोज वाइट वॉश बिल्डिंग्स एंड यू नो ब्लू स्टेयर्स एंड ऑल। वहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी था जो हमने छोड़ दिया, मतलब चला गया वो, उसका बुकिंग एक दिन से हमको नहीं मिल रहा था। देन वी केम टू ऑर्नोस, जो वी आर वेरी लकी टू स्टे देयर बिकॉज वी लव दैट अपार्टमेंट, एंड वो बहुत अच्छा क्वाइट प्लेस था। सो लिटिल वेनिस वॉज आवर फर्स्ट डे एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हमने ऑलमोस्ट पूरा दिन ही वहाँ पे स्पेंड कर दिया, एंड वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा वॉक करना पड़ता है हमको। अब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हम गए, फिर हमने विंड मिल्स देखा, देन वी वेंट टू एक्चुअल लिटिल वेनिस, वहाँ पे खाया, छोटे छोटे एलीज में हम घूमे, शॉपिंग किया वहाँ पे। वो पूरा जो वहाँ का सेक्शन है ना, वो किनारा, वो पूरा देख लिया एक दिन में। देखो, जो वेजिटेरियंस है ना, मेरे जैसे, फूड की बड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे। तो मैंने हार्डली कुछ खाया होगा, ओनली आई एट फ्रूट्स राइट एंड जूसेस। अगर आप पिज़्ज़ा पास्ता पे जिंदा रह सकते हो तो आपके लिए, आप वेजिटेरियन हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज माई हस्बैंड इज अ प्रॉपर हार्डकोर पंजाबी, तो उसको ना पिज़्ज़ा पास्ता पे वो जिंदा नहीं रह सकता। ही नीड दैट बटर नान एंड रोटी सब्जी वाला खाना, जो ऑब्वियसली ग्रीस में नहीं मिलेगा आपको। सो दैट वॉज द थिंग, अदरवाइज द फूड वॉज गुड। आई समहाउ फील कुछ जगह पे जो उनका मीट है, ऑब्वियसली ये कंट्रीज में सारा मीट खाते हैं लोग, तो मीट ना इट्स नॉट प्रॉपरली कुक्ड, मतलब वो ग्रिल्ड खाते हैं। अपने इंडिया में जैसे प्रॉपर कुक्ड मीट होता है वैसे वहाँ पे नहीं होता है। सो मुझे कुछ जगह पे थोड़ा सा ऑफ लगा, बट अदरवाइज आई एंजॉयड द ग्रीक फूड। एंड जैसे हरदीप ने बोला, वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोस्टली वहाँ का जो फूड है, इट्स लाइक
जो कॉन्टिनेंटल फूड हम बोलते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, एंड दे हैव देयर ओन यू नो ग्रीक डिशेज, ग्रीक सैलड जो बहुत फेमस है, आप वो खा सकते हो. एंड यू हैव डिफरेंट प्लेसेस. तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ स्टक होके एक ही जगह पे खाना है. देर आर मल्टीपल ऑप्शन. आप वहाँ पे जाके जिलाटो खा सकते हो, बट ऑब्वियसली आप आइसक्रीम पे जिंदा नहीं दे सकते हो, राइट. तो जिलाटो इज ऑप्शन, बट अदरवाइज आपको मतलब खाने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. थोड़े वेजिटेरियन आप हो या फिर वीगन हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से थोड़ा सा कैरी करके जाओ थोड़े जो अपने ठेपलाज होता है, मैगीज एंड ऑल दोस रेडी टू कुक फूड. क्योंकि आप एयरबीएनबी में रुकोगे तो एनी विच वहाँ पे आपको सारे कटलरीज एंड यूटेंसिल्स वो सब मिल जाएगा. यू कैन कुक योर ओन फूड. सो मिकनोज में जो एक्सप्लोर करना था टाउन, हमने ट्राई किया कि अगर हम बुक कर लें बाइक, बट जिस टाइम पे हम गए हुए थे उस टाइम पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे वो बाइक्स वगैरह दे ही नहीं रहे थे. वो बोल रहे थे ओके आपको अगर रेंट करना है तो आप कार रेंट कर लो. एक्चुअली वहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी भी होता है, बसेस भी चलते हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं कि बसेस होते भी नहीं है. जैसे हॉटस्पॉट है तो हम जहाँ पे रुके थे ऑर्नोस टू लिटिल वेनिस जाने के लिए बस था. बट अगर आपको कुछ ऑफ एरियाज घूमना है, इधर उधर बीच पे घूमना है, देन यू शुड हैव योर ओन व्हीकल, या फिर आप रेंट कर सकते हो स्कूटी और कार. आई वुड सजेस्ट आप स्कूटी रेंट करो. बस स्कूटी रेंट करने का एक ही ड्रॉबैक है क्योंकि वहाँ के जो रोड है वो अपने इंडिया के जैसे सीधे नहीं है. इट्स वेरी लाइक अप एंड डाउन, कैसे भी कहीं पे भी मुड़ते हैं, और बहुत मतलब स्लोप है, हिल जैसा. वो दैट इज आइलैंड, तो हिल वाला एरिया है वो. तो इट्स नॉट फ्लैट रोड्स. तो आपको अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल राइडिंग बाइक ऑन सच रोड देन डोंट ट्राई. जिस पर्सन से मैंने बाइक रेंट किया उसने डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे से पासपोर्ट का फ़ोटो तो लिया ही लिया, साथ ही साथ उसको ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो देना पड़ा मेरे को. तो अगर आप शेंगन एरियाज़ में ट्रैवल करते हो, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर आप इंडिया में एक्सप्लोर करने जाओगे रिस्पेक्टिव आरटीओज़ में तो उनका प्रोसेस जो है ना वो बड़ा ही डिफरेंट है. उसके लिए आपके पासपोर्ट पे और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे एंड आपके आधार कार्ड पे एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए. अगर किसी पे भी एड्रेस सेम नहीं है देन आपको पहले वो चेंज करवाना पड़ेगा. उसके बाद आपको जो है वो रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी. एंड एट द एंड जो आप डॉक्यूमेंट रिसीव करोगे ना वो A4 पेज पे रहेगा विद रिस्पेक्टिव आरटीओज स्टैम्प एंड ऑल. तो मैंने सोचा इसका अल्टरनेट एक्सप्लोर करना चाहिए. तो जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था मेरा, तो मैं एक वेबसाइट एक्सप्लोर किया जहाँ पे आपको जो है वो अपना पासपोर्ट अपलोड करना है और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है और आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है. तो वेबसाइट का नाम था इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट और शायद कुछ और था, बट अमूर्ता जो है वो लिंक मेंशन कर देगी. उस वेबसाइट पे आप जाओ, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो. प्राइस मैंने कुछ 3000 रुपीज़ पे किया वहाँ पे, और विद इन 24 आवर्स टाइम मेरा जो भी IDP था वो डायरेक्टली मेरी ईमेल पे आ गया और मैंने वो कैरी कर लिया. ऑल्दो उसकी मेरे को ज़रूरत पड़ी भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि जो बंदे से मैंने बाइक रेंट किया था उसने मेरा पासपोर्ट का कॉपी लिया और साथ में जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था इंडिया का वो लिया. और सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी उसने कुछ नहीं लिया मेरे से, बस वही जो उसके चार्जेस थे कुछ 25 यूरोज पर डे वो लिया. एंड नाउ दिस वाज अबाउट द Mykonos, बिकॉज Mykonos कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लैट टाउन है. बट इफ आई टॉक अबाउट सैंटोरिनी तो वहाँ पे आप ऐसे 2 व्हीलर और ये कार वगैरह हायर करके ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे. बिकॉज वहाँ पे क्या है ना, छोटे छोटे विलेजेस है, जैसे ईया है, फिरो स्टेफानी है, फीरा है, इरोमोवगली जो भी है. तो वो जो है वो आपको ऑन फुट ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा. वहाँ पे आप अंदर गाड़ी लेके नहीं जा सकते बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेयर्स. एक तो आई थिंक हम मऊदी बे या कहीं पे तो हम गए थे, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक 250 स्टेयर्स आपको नीचे उतरना और उतना ही ऊपर आना है, स्पेशली फॉर फोटोग्राफी एंड ऑल दो स्पॉट्स, यू नो, ब्लू डोम्स एंड ऑल. तो वहाँ पे आपको ये 2 व्हीलर या कार लेके आप नहीं जा सकते. यू हैव टू वॉक. देन द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू कवर इज द फूड एंड एक्टिविटीज दैट यू कैन डू देयर. तो बिकॉज दीज आर आइलैंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग तो होता ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गो ऑन हॉप ऑफ टूर्स जो आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड्स पे लेके जाते हैं. देन सैंटोरिनी की मैं पर्टिकुलर सैंटोरिनी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको वोल्केनो टूर और आई थिंक एक हिस्टोरिकल टूर कुछ तो होती है, वो सब है. जो आजू बाजू का जो एरिया है कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड ऑल वो लोग कवर करते हैं. बट अगेन लाइक वी वर नॉट मच इनटू यू नो डाइविंग एंड ऑल, दो वी लाइक इट, वी वांट टू डू इट सम डे, बट बिकॉज वी डिडंट गो फॉर दैट पर्टिकुलरली, तो हमने वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया या उतना. उसमें आई थिंक वो एक सनसेट क्रूज होता है विच यू नो टेक्स यू टू द सी और वहाँ से आप सनसेट देख सकते हो, वो सब हमने नहीं किया.
इंस्टेड ऑफ दैट वी वेंट टू अमाउदी बे, जहाँ से बहुत ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है और आप सी शोर पे बैठ के मस्त अपना डिनर लंच जो भी है वो कर सकते हो। मोस्टली सनसेट डिनर का कॉन्सेप्ट है, तो जब आप एक्चुअल सीजन में जाते हो तब आपको 8 o'clock 9 o'clock ऐसे कुछ सनसेट होता है, बट बिकॉज अभी विंटर का टाइम चालू हुआ है और इसलिए वहाँ पे सनसेट अपने इंडिया जैसे ही 6 बजे के अराउंड हो रहा था। सो यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको कब ट्रैवल करना चाहिए। सो इफ़ यू आर लाइक अस, हमको क्या होता है ना, हमको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पसंद नहीं है, दो ऐसे नहीं होता है हर बार। तो वी ऑलवेज ट्राई टू गो आइदर लाइक नियर टू ऑफ सीजन, और ठंडी में हम जाते हैं मोस्टली। तो इस बार जो हम गए थे वो शोल्डर मंथ में गए थे, तो जो भी ग्रीस और ग्रीक आइलैंड्स है वहाँ पे बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू एवरीवन, जो बेस्ट टाइम होता है वहाँ का सीज़न जो होता है ट्रैवल करने का, दैट सीजन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू सेप्टेम्बर, ओके, और मई टू लाइक जुलाई टू अगस्त इज लाइक अ पीक सीजन। वहाँ पे जो पीक सीजन होता है बहुत लोग जाते हैं सैंटोरिनी में, दैट इज अ पीक सीजन, रादर सैंटोरिनी एंड ऑल ग्रीक आइलैंड्स। एंड जो मार्च है, मार्च एंड अक्टूबर, दीज आर शोल्डर मंथ्स, क्योंकि नवंबर टू फरवरी इट्स अ कोल्ड सीजन और ऑलमोस्ट सारे आइलैंड जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सैंटोरिनी में, ऑलमोस्ट सारे वेंडर्स, सारे आउटलेट्स, फूड्स एंड ऑल द शॉपिंग स्टॉप, सब कुछ बंद रहेगा। इनफैक्ट फेरीज एंड फ्लाइट भी उसकी वजह से अफेक्ट होता है, बिकॉज ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पे, तो फेरीज भी बहुत कम चलती है और फ्लाइट्स भी बहुत कम चलती है उस टाइम पे। बट स्टिल वी डिसाइडेड कि हम जाते हैं थोड़े शोल्डर मंथ में, जहाँ पे हमको बहुत सारा क्राउड नहीं मिलेगा, बिकॉज हमको क्या है ना कि मतलब हम जुलाई टू अगस्त ऐसे कभी बीच में जाते हैं तो सैंटोरिनी जैसे फोटोज में या वीडियोज में आपको दिखता है रील्स पे, वैसे नहीं होता है। इट्स वेरी क्राउडेड, वेरी 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 क्राउडेड, एंड वी डिडंट वांट टू जस्ट गो एंड यू नो भीड़ में जाओ एक साथ 100 लोगों के साथ बैठ के सनसेट देखो वगैरह, हमको वो सब नहीं करना था। वी वांटेड अ पीसफुल वेकेशन जहाँ पे हम चिल अपने हिसाब से ट्रैवल कर सके, सब चीज़ें देख सके, बट अपने हिसाब से ट्रैवल कर सके। एक पॉइंट आई थिंक हम अभी भी भूल गए, कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे। तो जितना भी हमारा पास्ट ट्रैवल हुआ था, हमने क्या प्लान किया था, ओके मैट्रिक्स का सिम बाय कर लो, या फिर वहाँ पे लोकल सिम ले लो, या फिर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करके चले जाओ यहाँ पे। तो वो जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस थे, इस बार हमने क्या किया, मेरे पास एक प्रीपेड कनेक्शन था, मैंने उस प्रीपेड कनेक्शन पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर लिया। सो आई वॉज यूजिंग एयरटेल, that cost me around 800 rupees, 800 और 900 rupees for the international roaming। तो उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ कि हमको 100 मिनट्स का कॉलिंग मिल गया, इंडिया में करो या फिर आप ग्रीस में अगर आप कॉल करते हो, वो हमारा हेल्प हो गया उससे। दूसरा हमने क्या किया, हमने यू सिम का इंटरनेट पैक एक्टिवेट करवा लिया, जो मैंने मेरे फ़ोन पे एक्टिवेट किया, तो आई कैन यूज़ इंटरनेट। क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ऑन फुट, तो आपको प्लेसेस का अगर पता नहीं है, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट ऑन करो और गूगल पे लोकेशन डालो, देन ऑन फुट यू कैन गो टू दैट प्लेस एंड एक्सप्लोर। या एंड गूगल मैप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ग्रीस, बिकॉज आपको ऑन फुट जाना है और आपको मतलब वो स्ट्रीट एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट इन ऑल दो स्ट्रीट। ऑब्वियसली जो सारा सब कुछ जो भी डिटेल्स है, कॉस्टिंग एवरीथिंग आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, तो आपको कहीं पे भी कभी भी जाके चेक करना, यू कैन जस्ट चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वी विल मेंशन एवरीथिंग ओवर देयर। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, हाउ वी प्लान आवर ग्रीस ट्रिप। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बिकॉज वी वांटेड टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स, बट स्टिल अगर कुछ भी हमसे मिस हुआ है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी डिडंट कवर, जस्ट लेट अस नो इन कमेंट्स डाउन बिलो एंड वी शैल रिस्पॉन्स यू इन कमेंट्स। और अगर हमको लगता है कि हमको बहुत सारे क्वेरीज और आ रहे हैं तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। आई विल ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन बॉक्स इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी सो दैट यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चंस देयर। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग माई वीलॉग, ग्रीस वीलॉग, जो हम हर अलग अलग आइलैंड्स पे गए थे और जो भी हमने एक्सप्लोर किया मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है इस बार। That's it for today's video, guys. Thank you for sticking till the end, and if you have watched this video till the end, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and I shall see you super soon in my next video. Till then, watch my other videos. Take care and bye. Bye bye.